Okay. Srijita joined. Palak now joined. Okay. Please let me know whether you can see my screen or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you are seeing here one quote is given which says that good marketing makes the company look smart. Means good marketing is good for the company. But the great marketing makes the customer feel smart. So again here this marketing word is highlighting the importance of consumer satisfaction. Do you all agree with me? Yes, sir. And if we have to define the term marketing itself, we'll say that it is concerned with exchange of goods. Please underline this. Exchange of goods and services from producer to consumer, or you can say the user of that product or service, in such a way that maximizes the satisfaction of customers' need. Correct? So, in marketing, to do this, to maximize the satisfaction of customer need, uh, to exchange the goods and services from producer to consumer, there is a list of functions which a marketing manager has to perform, or these are the functions of marketing. Correct? The first one is that we have to gather and analyze the market information. Basically, this point is to highlight the or understand the need of consumer. Getting it? So we'll say that it is to identify the need of the consumer. That what actually is needed in the market. That's why you are gathering or analyzing the market information. Correct? Like, see, suddenly due to this pandemic, lot of this kind of things are required where we can contact to each other online. So there was only one thing which was available, like Zoom. Now you see how many are there. Huh? Even we are using the Google Meet. There was no Google Meet earlier. It was Hangout, through which video call was possible, and that was also very with the limited people. No, so see, we need to identify the need of the consumer, then only you can satisfy it. You agree with me? Say yes, no. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And Yes. you must have seen that on TV news channel or any of the TV program. It is asked that, that you please reply, you give your opinion through this SMS, you vote. No, your vote is asked, your opinion is asked. You know why this happens? This is again to gather the market information. That what people are actually uh, ready to listen, ready to see, and that actually is shown on the television. हाँ? Throughout the day, हर चैनल का एक कोई प्राइम टाइम होता है. हाँ, जैसे जी का DNA है,
हाँ, इस तरह से हर चैनल का अपना अपना कुछ है। हाँ, इंडिया टीवी का कुछ और है, तो जो मेन एंकर होते हैं उसके वो उसी टाइम पे आते हैं। तो दिन भर वो इन सब के थ्रू, एसएमएस के थ्रू पॉपुलैरिटी का पता करते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा न्यूज़ बहुत पॉपुलर है, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग और कुछ देखना चाहते हैं, फिर उसको उस टाइम पर वो लोग दिखाते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ भी है ना। तो इसका पहले का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। प्लीज डोंट राइट दिस हेडिंग, ये हेडिंग यू विल यूज दिस ओनली। Gathering and analyzing market information, it is just for your understanding that it means that you have to identify the consumer needs। आप ब्रैकेट में या बगल में चाहो तो लिख लो कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। कंज्यूमर को क्या चाहिए, है ना, कार में उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए, ये सब पता करना। हाँ, हेयर ऑयल में उसको क्या चाहिए, फोन में कौन से फीचर्स चाहिए, ये पता करना ही पहला फंक्शन है मार्केटिंग का। करेक्ट। दूसरा फंक्शन इज प्लानिंग, है ना। अब हमें पता तो कर लिया कि ये चीज चाहिए, तो उसको प्लान करो। अब देखो हम उसको कैसे, जैसे मान लो हमने ये पता कर लिया कि अभी आने वाले समय में इसमें एग्जांपल दिया हुआ कलर टीवी का डिमांड और बढ़ेगा, और हमारा शेयर, मार्केट शेयर अभी 10% है, तो हम कैसे इसको 20% कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। या जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी थी फर्स्ट स्टेप में, उसके अकॉर्डिंग नाउ विल टेक द एक्शन, एंड देन फॉर दैट एक्शन वी विल प्लान। So the second thing is what you have to have the planning, correct। और मार्केटिंग का प्लानिंग कैसे होता है कि हमें मार्केट शेयर कितना और कितने समय में ले लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है मार्केटिंग में। देन कम्स द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ वी नीड टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ कंज्यूमर, राइट। एक let me show you. See, this is a pen. It looks very normal pen. Can you all see it? Yes, sir. Okay. And this pen is working as a stand for phone also. See this. You can keep it like this. Let me show you. Can you see it? So this way you can put the phone like this. As well as this pen can be used as a touch, like there's a stylus also. You can use it like this. So if it has been identified that people are in need of this type of pen, now you need to design it. You need to develop this product. That how can we do so? है ना। अब देखो यहाँ पे बुलेट मोटरसाइकिल की फोटो दी हुई है। पहले पुराने जमाने में जो बुलेट मोटरसाइकिल आती थी उसका ब्रेक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता था, लेकिन सभी मोटरसाइकिल में राइट साइड में होता है, तो इसमें भी चेंज कर दिया गया, इसके डिजाइन को राइट साइड में कर दिया गया। इसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम होता था, तो उसमें बटन लगा दी गई, बटन से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ऑल विच अ मार्केटर हैज टू डू, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देन कम्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का क्या मतलब, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, यू रिमेंबर? Say yes, no. Yes, sir. So standardization refers to producing goods of predetermined specification which help in achieving uniformity and consistency in the output.
It ensures that buyer that goods conforms to the predetermined standard of quality, price, packaging, है ना। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ही है कि आप जब भी कभी एक पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदते हो, चाहे आज खरीदो चाहे 10 महीने बाद खरीदो, सेम फ्लेवर, सेम उसका टेस्ट, सब कुछ वैसा ही होता है कि नहीं। लेकिन यही स्टैंडर्डाइजेशन सब जगह पॉसिबल नहीं है। आपके आसपास में जहां जलेबी बिकती है, कचौड़ी बिकती है, आप देखो उस जलेबी कचौड़ी में रोज एक जैसा स्वाद नहीं भी हो सकता है। कभी कभी एक ठीक रहेगा, कभी नहीं भी ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन फिट नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन पे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप कहीं लोकल मार्केट से रसगुल्ला लेते हो, कभी अच्छा मिल जाता है, कभी खराब मिल जाता है। बट हल्दीराम का अगर आप लेते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का। हाँ, आपको हर बार वो उसी तरीके से बनेगा, और आप चाहे आज एक हल्दीराम का डब्बा खरीदो रसगुल्ले का या 3 दिन बाद खरीदो, ऐसा ही मिलेगा आपको। तो ये मार्केटियर का काम है कि उस स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन रखना। नाउ व्हाट इज ग्रेडिंग? Grading is the process of classification of products into different groups on the basis of what? Quality, size, etc. Right? So grading is basically, it ensures that goods belongs to a particular quality and helps in realizing higher prices for high quality output. ये ग्रेडिंग का काम हो गया है। ग्रेडिंग का काम क्या? एक जैसा प्रोडक्ट को मतलब शॉर्टिंग करना, एक तरह का है ना, अलग अलग करना, तब हमें अच्छे से उसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छे से हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते, मार्केट कर सकते। दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक ना। आप देखो टी लीव्स मार्केट में खरीदने जाते हैं, लूज टी लीव्स, तो अलग अलग तरह का चाय पत्ती के कई सारे डब्बे रखे होते हैं ना। एक चाय कुछ 200 रुपए का भी मिल सकता है, 800 रुपए का भी मिल सकता है। तो ग्रेडिंग पे ही है। फिर पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग का क्या मतलब? पैकेजिंग रेफर्स टू designing and developing the package for the products. Labeling refers to designing and developing the label to be put on the package. Correct? So packaging and labeling have become so important in modern time. आप देखो कभी किसी ने आज से कुछ साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि दूध भी जो है वो कोई आदमी जनरल स्टोर से जाके खरीद सकता है। नो वन एवर थॉट अबाउट इट। पानी कभी बॉटल में बंद होकर के बिकेगा? नो वन हैड एवर थॉट अबाउट इट। दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। राइट? और लेबलिंग करने का एडवांटेज क्या है? हमें ठीक ठीक पता चल जाता है ये किससे बना है, कैसे बना है, किसने बनाया है इसको। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी होती है। करेक्ट? तो ऐसे कुल टोटल 12 पॉइंट्स हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला वाला पॉइंट तो आपको चेंज करना पड़ेगा, बुक में जो लिखा है वही यूज करना। पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे हम आते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन का इस एग्जांपल से भी आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो कोई भी बल्ब हो वो इसी होल्डर में फिट हो जाता है
है ना, ये स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से है। कोई भी तरह का केबल हो, है ना, कोई भी तरह का मोबाइल हो, उसमें ये सी पोर्ट, यूएसबी सी, ऐसे 2-3 हैं जो लग जाएंगे, है ना। ये कनेक्टर्स हैं पाइप को ज्वाइन करने के लिए। अगर ये ना हो और मान लो सब कंपनी अलग अलग साइज का पाइप बनाए तो ये कनेक्टर कैसे काम आएगा? इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन का और ग्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ कम टू द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग से हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी आराम होता है, और दूसरा उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी सुविधाजनक होता है ना। अगर मान लो ये ऐसे ही बॉटल में नहीं मिलता कोल्ड ड्रिंक, तो आपको अपने घर से कुछ बर्तन लेके जाना पड़ता लेने के लिए। तो ये सब पैकेजिंग लेवलिंग की वजह से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रांडिंग। अब आप देखो कितना आसानी से, द मोमेंट यू सी दिस पिक्चर you can easily identify, no, just this mark will help you to identify that which shoe is this, which brand is this, isn't it? You all agree with me? So what is Yes, sir. branding? If it is asked that what is branding, your answer would be what? Identity of a product. See, it's a process of giving a name, sign, symbol, or design used to identify the products. ये मेन बात है, ये वर्ड याद कर लो। Next function of the marketing is what? It is to set up the customer support service. You must have seen all these type of number which is, start with 1800. Yes, no? Yes, sir. So these are the customer support service. Our work is not just selling. Selling and marketing, the basic difference is what? That we have to satisfy their needs. So how their needs should be satisfied? If we say that if you need to buy something, come to my office or come to my shop, then only I will send you. No. If you are busy, no issue. You just send me the order, a list of the product which you want, and we will deliver it at home. Like you can see here. No? Home delivery. This is what customer support service. Then after sale services. Like something has, you have purchased a product, washing machine, television, car. After some time, it requires repair. And if there are no servicing point, would you like to buy that kind of thing? You must have heard many a time at your home also कि AC कौन सा खरीदें। हाँ, तो सब बोलते हैं वोल्टास का AC बहुत बढ़िया होता है, हाँ, जनरल का बहुत बढ़िया होता है। बट फिर तुरंत आप बोलते हो नहीं नहीं, इनका ना सर्विस बढ़िया नहीं है, इतना भीड़ रहता है, आप एक बार कंप्लेन करोगे 3 महीने में आपका ठीक होगा, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा लॉयड का आ रहा है, उसका सर्विसिंग बहुत बढ़िया है, तो वो ही ले लो। इट हैपेंस और नॉट? Yes, sir. So customer support service is also very very important function of marketing. And then it comes pricing. Lot of myth is there about this. Today please break all these. प्रोडक्ट का प्राइस कौन तय करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, है ना। जैसे ये पेन जिसने बनाई होगी, तो इसका जो सीईओ है वो नहीं तय करता कि इसका प्राइस क्या होगा। कौन तय करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट तय करता है। हाँ, प्राइसिंग को तय करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन सब को कंसीडर किया जाता है। आगे चल करके हम अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट विच यू हैव टू
do considering so many factors, like what is the demand in the market, what is the market condition, and what are the prices of your competitors. गेटिंग इट? लाइक पेप्सी का एक बॉटल अगर मान लो 12 रुपए में बिक रहा है, तो क्या थम्स अप उसको 24 रुपए में बेच सकता है, 25 रुपए में बेच सकता है? नो सर। चाहे No, sir. जितना भी आपका ब्रांड लॉयल्टी हो, आपको कितना भी थम्स अप पसंद हो, लेकिन अगर पेप्सी 12 रुपए में बिकने लग जाए और वो 25 रुपए में, तो आप उसको छोड़ करके पेप्सी पीना शुरू कर देंगे कि नहीं? बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Then comes the promotion. This is one word. You know, in commerce, it has been used many times and with different meaning. क्लास 11 में जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे, तब भी हमने प्रमोशन पढ़ा था। यस नो? Yes, तो sir. फिर अभी डायरेक्टिंग में, सॉरी स्टाफिंग में भी हमने प्रमोशन पढ़ा। Yes, sir. But this was different. Both these were different. This one is completely different. It refers to informing the customers about the firm's product, their features, etc., and persuading them to buy the products. ये है इसका मतलब। अब इस प्रमोशन में 4 मेजर पार्ट हैं, 4 मेजर तरीका है। क्या? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, है ना, और पब्लिसिटी। 1 2 3 4, ये 4 मेजर प्रमोशन के मेथड्स हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, यानी कस्टमर के घर पर जा करके आप बेच सकते हैं डोर टू डोर, या जब कस्टमर आपके शॉप पे आता है तो आप देखते हो एक सेल्समैन होता है, वो आपको कन्विंस करता है, आपको दिखाता है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ये इस कस्टमर को कैमरा दिखा रहा है, ये एक तरीका है। फिर सेल्स प्रमोशन से स्कीम्स यूज कर सकते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, आप एक खरीदेंगे एक पे एक फ्री मिलेगा, तो आप नहीं चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। या उस पर ऑफ हो, है ना, प्राइस का ऑफ हो, या क्वांटिटी ज़्यादा हो। ऐसे प्रमोशंस के भी जो अलग अलग मिक्स हैं, वो हम लोग थोड़े बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ये तरीका है प्रमोशन का। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. देन कम्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में से ये डिलीटेड पार्ट में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या? इट इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी प्रोड्यूसर से, ये प्रोड्यूसर है, इससे कंज्यूमर तक ये कैसे पहुंचेगा, ना? कौन होगा जो पहुंचाएगा इसको? तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा। हो सकता है बीच में आप ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल करें, वेयर हाउसिंग का भी इस्तेमाल करें। ये सब मिल करके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है। करेक्ट? तो स्टॉक मेंटेन करना, इन्वेंट्री रखना, वेयर हाउसिंग, ये सब किस में आएगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। Correct? So it includes decision like choice of channel of distribution, maintaining inventory, storage, warehouse, ये सब। Clear? Say yes, no. Yes, sir. यस सर। Promotion हो गया, physical distribution. Then comes the transportation. This is also one of the function of marketing only. It means it involves physical movement of the goods from its place of production to its place of consumption. राइट? यहाँ पे जानबूझ करके केवल गुड्स वर्ड लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसमें गुड्स एंड पर्सन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन, बट हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन से ही है। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में हमको ये तय करना है कि हम किससे भेजें, प्लेन से भेजें, हेलीकॉप्टर से भेजें, बस से भेजें, ट्रेन का इस्तेमाल करें, साइकिल से भेजें या जहाज से भेजें, कैसे भेजें सामान को। ये चूजिंग द करेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ क्रूशियल डिसीजन विच विल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, क्या भेजना है, कितनी जल्दी भेजना है ना, उसमें कितना कॉस्ट हम खर्च कर सकते, इस सब फैक्टर्स को कंसीडर करके तब ट्रांसपोर्टेशन का मोड्स को सेलेक्ट किया जाता है। Then comes the warehousing. Warehousing means, and what is the need of warehousing? See, there is always a lag time between production and consumption of goods. You agree with me? जैसे ही जो चीज बना या पैदा हुआ या खेत में प्रोड्यूस हुआ, क्या इमीडिएटली उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा? क्या No, sir. प्रोडक्शन और कंजम्पशन के No, बीच sir. में कोई गैप नहीं होता? होता है। इस गैप को पूरा कौन करता है? वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। इसीलिए हमको स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है, और स्टोर ऐसे करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो खराब ना हो, है ना। आलू पता है तुम्हें, साल में एक ही बार पैदा होता है, जाड़े के दिनों में। अभी इस समय खेत में आलू लगा हुआ है, थोड़े दिन में निकलेगा या कहीं कहीं पे निकल भी गया है। मार्केट में नया आलू जो मिल रहा है आपको, वो मार्केट से आया है सीधा, सॉरी खेत से आया है। इन अभी 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद भी आपको मिलेंगे आलू। तो वो आलू कहाँ से आते हैं? वो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते हैं, वहीं से निकल निकल के आते हैं। ये वेयर हाउसिंग का ही कमाल है कि आपको एक चीज पूरे साल भर मिल जाती है। ये टोटल फंक्शंस हैं मार्केटिंग के। अब इसमें से कोई भी फंक्शन को अगर एक बार फिर से समझना है, कुछ को डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन। ओके। So do you have any question?